So today we'll be starting one phase to one phase. Bridge type, cycloconverter. One phase to one phase, bridge type cycloconverter. In yesterday's class, we had discussed one phase to one phase, center tap type, step up cycloconverter. So in this case also we'll be discussing step up. बीच में include कर लेना step up cycloconverter. ठीक है. So आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रिज टाइप. स्टेप अप तो है नो डाउट, बट ब्रिज टाइप है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिड पॉइंट टाइप विल बी यूजिंग ब्रिज टाइप. स्टेप अप मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप अप? हाँ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन हाँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी. AC to AC converter, but output frequency will be greater than the input frequency. That is why it will be known as the step-up cycloconverter. Okay, now let us discuss the circuit diagram. Okay, rub करियो. हाँ, हार्ट चला गया. Okay, so this is a circuit diagram. बना लो circuit diagram. P means positive group. अच्छा, नेमिंग एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया. हाँ, नेमिंग. यहाँ तक ड्रॉ करो. मैं एक मिनट नेमिंग देख रही हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. एक मिनट रुक जाओ.
Okay. So N means negative group and P means positive group. ठीक है? So V naught. We are measuring V naught across the load. This is a supply. So supply is one phase AC supply and output is also one phase AC output. Okay, so AC to AC converter. It is AC AC converter. Okay. Input is also one phase. That is why it is one phase to one phase. Input is also one phase AC and output is also one phase AC. Okay. So diagram is over. There are four, 4 plus 4. There are 8 numbers of thyristors. ठीक है. P stands for positive group जो कि मैंने green से mark किया P1, P2, P3, P4 and negative groups are marked with the blue ones, that is N1, N2, N3, N4. Vs is a supply and V naught is the output voltage measured across the load. Vs is also one phase AC and V naught is also one phase AC output voltage. ठीक है. So AC AC, that is why it is AC AC converter. Okay. So now let us discuss the working of the circuit. Okay. So input is AC. We know input is AC. So we have got positive half and a negative half. So let us discuss about the positive half first. So during positive half, before that let us name all these points. Let us name this as A and B. This is also A and this is B. Okay, name all these 4 points. A, see, A is shorted with A. That is why it has been named like this. You can see A point. Same, actually, there are two types of two converters. One is your positive converter, another one is a negative converter. And A pointers, both the A points are connected with Vs, and both the B points are connected with Vs. Okay, so A points are same. Is it clear? A point you can see over here. This is the A point. A point is same. Clear na? Similarly B point is also same. B point is also same. मतलब बोलने का मतलब AC सप्लाई वोल्टेज एक ही है, वहां से A पॉइंट जो है दोनों कन्वर्टर्स में कनेक्टेड है और B पॉइंट भी जो है वो दोनों कन्वर्टर्स में कनेक्टेड है. Now let us discuss about the positive group. Now when the positive half is coming into picture for Vs, then point A is more positive than point B. Point A जो है वो ज़्यादा positive होगा point B के comparison में. ठीक है. सो कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस्ड होगा? लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव ग्रुप. पॉजिटिव ग्रुप में कौन सा फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? P1 P2. ओके. एंड इसमें नेगेटिव में N2 एंड N1. ठीक है. सो यहाँ पे साइड में लिख के रखो पॉजिटिव ग्रुप में ऐसे लिख दो. पॉजिटिव हाफ, सॉरी, पॉजिटिव हाफ में कौन सा फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? P1 P2 फॉर द पॉजिटिव ग्रुप. ओके. एंड N1 एंड ऑल्सो N1 N2. ठीक है, ऐसे लिख के रखो. पॉजिटिव हाफ में P1 P2 are forward best and from the negative group you have got N1 and N2. ठीक है, so these four thyristors are forward biased, right? And during negative half, when the negative half is coming into picture, when the negative half will be there, B point reverse हो जाएगा. B point will be more positive than A point. B point will be more positive than A point, तो reverse हो जाएगा. So from the positive group, नेगेटिव हाफ में क्या क्या आएगा? जस्ट उसका उल्टा. नेगेटिव हाफ में आएगा P3 P4
from positive, and from the negative group we will be having N3, N4. So note it down. Positive, negative half P3, P4 and N3, N4, right? So negative half with 4 thyristors and positive half also 4 thyristors will be working. Okay. Now tell me from the yesterday's class, positive group means it will convert. If negative half is coming from the supply, what will positive group will do? पॉजिटिव हाफ सो पॉजिटिव हाफ अगर पॉजिटिव ग्रुप जो है हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा इनपुट उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इनपुट होगा उसको नेगेटिव हाफ में कन्वर्ट करेगा. हाँ, दैट इज व्हाट द मेन लॉजिक इज. Okay, now so in the positive half P1 P2 and N1 N2 they will be working, and during negative half P3 P4 and N3 N4 they will be working. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल इस तरह से करना है कि वी विल बी गेटिंग अ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर. सॉरी, हाँ, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर. स्टेप अप मीन्स वेयर एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ एस. Okay, so now let us discuss the waveform. Working is over. Now let us discuss the waveform. हाँ, रब करियो. Okay, waveforms. So this waveform shows VAB. Here we will be discussing Vs as well as Vout. Output voltage and supply voltage, both together. So VAB is this one, this black line. And this blue line shows VBA. So VBA is reverse of VAB. VAB means where A point is more positive than B, and VBA shows where B point is more positive than A. Okay. So this is about the supply, this black and blue one. Okay. So now we will be discussing the output. This is about Vs. Now let us discuss about the output. Use a different colored pen or pencil so that you can understand. So this pink line shows the output. Okay, black and blue shows the input Vs, and the pink line shows the output voltage, that is your V0. Okay, so now let us write down what are the this thyristors are working. So here during this time P1 P2, okay, and during this time N1 N2, because positive half, during positive half just now we saw na P1 P2 or N1 N2. So P1 P2, that is why N1 N2 का देखो जो आउटपुट है वो नेगेटिव आ रहा है. You can see ना, P1 P2 क्या कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, and N1 N2 नेगेटिव दे रहा है. Can you mark one thing? Is it clear? हाँ, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप है तो वो नेगेटिव आ रहा है आउटपुट. ओके, जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे, बट कल हम लोग जो डिस्कस किए थे वो सिंगल सिंगल थायरिस्टर वर्क कर रहा था. यहाँ पे एक पेयर में है.
अगर पेयर में नहीं होगा ना तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, दैट इज वाई यहाँ पे ये ब्रिज टाइप में हमेशा पेयर में ही ऑपरेट करता है। ओके, नाउ for this other half, for negative half we have got P3 P4 or N3 N4. So P3 P4 N3 N4. ओके, सो P3 P4 वैसे ही पॉजिटिव, अगर देखो नेगेटिव आएगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, और N3 N4 अगर पॉजिटिव आया तो भी उसको नेगेटिव, आउटपुट विल बी नेगेटिव। Okay, so I have written over here in which time which thyristors are working. Okay, so positive हाफ जब हो रहा है सप्लाई का तब इधर P1 P2 और N1 N2, एंड जब नेगेटिव हाफ आ रहा है तो इधर P3 P4 या फिर N3 N4. So this is how we'll be getting output. Now let us discuss about, and this side let us write down this x-axis we haven't mentioned. X-axis is time axis. Okay, T stands for time. Now let us discuss about the time period. So what is the time period for the supply side? TS. TS means time period for supply voltage. Okay. Now what will be the time period for this input side? This is the time period, isn't it? T naught. समझ में आ रहा है? T naught, time period of the output voltage. TS is time period of supply voltage. So you can see na time period has reduced. तो इनवर्स रिलेटेड अगर टाइम पीरियड रिड्यूस्ड हुआ सो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, इसलिए इसको स्टेप अप बोल रहे हैं। तो टी नॉट इज हाउ मच, हाउ मेनी, टी एस इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टी नॉट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू योर टी एस। कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स। देखो यहाँ से, हाँ 2 टाइम्स नहीं, देखो 2 हुआ, 3 हुआ, हाँ 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। अभिषेक इज राइट। 1, देखो मैं मार्क करी 1 2 3, ब्लैक से मार्क करिए 4 5 एंड दिस last point 6, so 6 times. So you can write TS is equal to 6 times T naught. ठीक है, depending upon the relation which we are getting from the waveform, TS is equal to 6 times T naught. So from there you are getting F naught is equal to, कितना आ रहा है? F naught is equal to, इसको अगर सॉल्व करेंगे F naught will be equal to 6 times FS. हाँ 6 FS आएगा। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, TS के जगह पे 1/FS लिखना एंड T naught के जगह पे 1/F naught. So from there you will be getting F naught is equal to 6 times FS. So in this case your F naught is greater than FS, isn't it? 6 times हो गया। फ्रीक्वेंसी जो पहले का फ्रीक्वेंसी था वो कम था, अभी जो आउटपुट है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया ना। इफ यू ऑब्जर्व द पिंक लाइन, फ्रीक्वेंसी हैज इंक्रीज्ड, 6 टाइम्स हो गया। तो ये जो है ना यहाँ पे, जैसे हम लोग पॉजिटिव हाफ में 3 टाइम्स कर रहे हैं, टोटल जो है हम लोग 6 टाइम्स कर रहे हैं, इसको 4 टाइम्स भी किया जा सकता है। 4 टाइम्स कैसे करेंगे? 4 टाइम्स के लिए तुमको P1 P1 P2 N1 N2 P1 P2 N1 N2 स्टॉप, ठीक है, पॉजिटिव हाफ में। उसके बाद P3 P4 N3 N4 P3 P4 N3 N4 स्टॉप, इस तरह से ऑपरेट करे। दैट मीन्स यू हैव टू कंट्रोल द टर्निंग ऑन ऑफ थायरिस्टर इन सच अ मैनर दैट you can get a step up frequency for the output voltage. So 6 times यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, but as per your requirement you can get the output voltage whatever times you want, ठीक है।
सो दिस इज अबाउट स्टेप अप, इसलिए इसको स्टेप अप कह रहे हैं, वन फेज टू वन फेज स्टेप अप ब्रिज टाइप, क्योंकि ये ब्रिज टाइप कनेक्शन था, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रिज टाइप। ठीक है, सो स्टेप अप वाला कंप्लीट हो गया, नाउ विल बी मूविंग टू स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन वाला डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इतना ही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर हुआ ना अभिषेक, समझ में आ रहा है? ओके, अनिशा कोई डाउट है तो पूछ सकती हो। ये समझ में आया ना 6 टाइम्स कैसे हुआ? समझ में आया? अच्छा अच्छा, नहीं पूरा देखना है, पूरा 1 कंप्लीट टाइम पीरियड तक देखना है। Okay, so now the next topic. Next topic is one phase to one phase. One phase to one phase means supply is one phase and the output voltage is also one phase AC. One phase AC supply voltage to one phase AC output voltage. Okay. Now we'll be discussing step down. Step up is over. Step down. Midpoint type. Midpoint or center tap type. बोल सकते हो midpoint. Point. PT means point. So this is the next topic. One phase to one phase step down midpoint type cycloconverter. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन का क्या मतलब होगा? एफ नॉट विल बी स्मॉलर देन एफ एस। हाँ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम होगा, एफ नॉट विल बी स्मॉलर देन एफ एस। ठीक है, इसलिए इसको स्टेप डाउन कहा जाएगा। एंड मिड पॉइंट मीन्स यहाँ पे हम लोग को, जैसे हम लोग इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस कि देयर विल बी ट्रांसफार्मर जो कि सेंटर टैप टाइप होगा एंड वहाँ से कॉमन लोड कनेक्टेड होगा। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम सेम ही है जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, सेम सर्किट डायग्राम। सो देयर विल बी अ सोर्स, वन फेज एसी, ओके, transformer, these parallel line shows core, common load रहेगा, there will be a common load, so this is a circuit, draw the diagram. N means negative group, V naught, okay, this is point A, this point is point A, this is point O, midpoint is point O, and this is point B. A is the upper point, O is the midpoint, and B is the lower point. Okay, so there is a transformer. A transformer has to be a midpoint type. अच्छा, यहाँ पे देयर इज एन अज्यूमशन, हाँ, जो मेरा लोड है दैट इज योर आर एल टाइप,
ये साइड में नोट कर लेना। एक्चुअली यहाँ पे दिखाना था, मिस हो गया। सो लोड यू राइट डाउन, नोट डाउन, इट इज RL टाइप, वी आर अज्यूमिंग इट इज एन RL टाइप लोड। ठीक है। ओके ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अच्छा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। Okay, so now let us discuss the working of the circuit. So during positive half, point A is more positive than point B. ठीक है, तो हम लोग का कौन कौन सा कहेंगे कि कौन कौन सा हमारा ये हो रहा है, फॉरवर्ड बाइज्ड हो रहा है थायरिस्टर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, P1 N2, okay, P1 and N2. So P1 or N2, and during negative half, P2 or N1 will be forward biased. ठीक है, so now let us discuss the waveform. हाँ, इसको नोट कर लेना। नोट कर लिए, ठीक है। ओके, नाउ द वेव फॉर्म थोड़ा सा पहले से अलग है क्योंकि हम लोग अभी स्टेप डाउन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वेव फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सप्लाई को थोड़ा छोटा छोटा बनाना, हाँ, और छोटा बनाना पड़ेगा, स्पेस नहीं होगा। So write down this is Vs with respect to time, and next we will be drawing V naught. Okay, so this is supply voltage,
नाउ जीरो क्रॉसिंग्स को हाईलाइट करना है एंड एक्सटेंड करना है नीचे, लाइक दिस. राइट, यहाँ तक कंप्लीट करो. ओके, ओवर. यहाँ तक हो गया. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग आर एल लोड. हम लोग यहाँ पे आर एल लोड लिए हैं. सो आर एल लोड में यू नो ना, सपोज पॉजिटिव, नाउ यू सी पॉजिटिव हाफ इज कमिंग इनटू पिक्चर. पहले एक पॉजिटिव हाफ आ रहा है. तो वेन एवर पॉजिटिव हाफ इज कमिंग इनटू पिक्चर, अभी हम लोग डिस्कस किए पॉजिटिव हाफ में. अभी नोट्स देखो एक बार. पॉजिटिव हाफ में इधर P1 और या N2. ठीक है. तो सपोज मैं अज्यूम करूँ P1 मेरा फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है. सो हाउ द वेव फॉर्म विल बी देयर. पिंक पिंक कलर में ड्रॉ कर रही हूँ. ऐसा आएगा आउटपुट. फायरिंग हुआ यहाँ पे. ठीक है. P1 इज फायर्ड एट दिस फायरिंग एंगल. एंड RL लोड है ना. RL लोड होगा तो ये once the negative half is also coming into picture, L will not allow the sudden change of डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो L में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो फ्लो करता है नेगेटिव हाफ में भी. इसलिए नेगेटिव हाफ में ये वाला आ रहा है पिंक पार्ट. ठीक है. अगर R होता तो ये नेगेटिव पार्ट नहीं आता. दोज थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना. ये सेम कॉन्सेप्ट है. सो P1 वर्क कर रहा है. ओके. फिर नेगेटिव हाफ आ रहा है. देखो देखो नेगेटिव हाफ आ रहा है. इसके बाद नेगेटिव हाफ में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, साथ साथ लिखते जाओ. हाँ, यहाँ पे मेरा P1 है. ठीक है. P1 इज वर्किंग फ्रॉम दिस टू दिस रीजन. यहाँ से देखो, यहाँ से लेके मैं हाईलाइट कर रही हूँ दिस टू दिस रीजन, यहाँ तक जहाँ तक मैंने बनाया. ओके. क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट, यू मे बी आस्किंग नेगेटिव पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर RL लोड है ना तो L विल नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट थ्रू दिस. तो L होने के चलते कुछ देर के लिए नेगेटिव हाफ में भी करंट फ्लो होगा. तो जब तक वो फ्लो हो रहा है तब नेक्स्ट फायरिंग हो जा रहा है. अच्छा, नेगेटिव हाफ अभी आ रहा है. देखो यहाँ पे नेगेटिव हाफ इज कमिंग इनटू पिक्चर. नाउ नेगेटिव हाफ में कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे. देखो एक बार नेगेटिव हाफ में. नेगेटिव हाफ, हाँ P2, इधर P2 या फिर N1. N1, हाँ P2 या फिर N1. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसको, P2 को. तो पॉजिटिव ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव हाफ है. देखो नेगेटिव हाफ है. देखो ये नेगेटिव हाफ है ना. नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. तो मेरा आउटपुट कैसा आएगा नेक्स्ट. ओके. तो यहाँ लिखते जाओ, ये है P2. नेगेटिव हाफ है तो P2 ऑपरेट कर रहा है. एक्चुअली मैं पॉजिटिव ग्रुप्स को ऑपरेट कर रही हूँ. पॉजिटिव हाफ था, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाँ, पॉजिटिव हाफ था तो P1 वाज ऑपरेटिंग. ठीक है. फिर नेगेटिव हाफ आया. द मोमेंट नेगेटिव हाफ इज कमिंग, आई एम नॉट अलाउइंग N1 टू ऑपरेट. क्यों, क्योंकि मेरे को अभी स्टेप डाउन चाहिए ऑपरेशन, स्टेप अप नहीं चाहिए. जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कंट्रोल करना है. आई नीड अ स्टेप डाउन ऑपरेशन. सो दैट इज वाई आई हैव टू ऑपरेट P2, नॉट N1. तो पॉजिटिव P2 मतलब पॉजिटिव ग्रुप, सो इट विल कन्वर्ट द नेगेटिव हाफ. दो द नेगेटिव हाफ इज कमिंग फ्रॉम द सप्लाई, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव हाफ. ठीक है. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक P2 इज वर्किंग. तो तब तक नेक्स्ट फायरिंग हो जा रहा है. नेक्स्ट फायरिंग फिर से मैं पॉजिटिव ग्रुप को ले रही हूँ. ठीक है. तो लाइक दिस. ओके. इसको नोट करते जाना. ये मेरा P1 है. वंस अगेन P2. P1 P2 P1 P2. ठीक है. अब ये एज बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको मैं मेरे को एक्सटेंशन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. P1 के पहले भी कुछ हुआ होगा ऑपरेशन, इसलिए ये इस तरह से आएगा. ठीक है. अब ये मेरा पॉजिटिव पार्ट कंप्लीट हो गया. अभी मैं चाहती हूँ नेगेटिव ग्रुप को ऑपरेट करना है.
ठीक है। नेगेटिव ग्रुप में अब तुम्हारा जैसे अभी ये पॉजिटिव हाफ आ रहा है, देखो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक समझ में आया आया कि नहीं? यहाँ तक पहले बताओ, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आगे जाके। यहाँ तक क्लियर हुआ? अनिशा बताओ। अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव ग्रुप को ही ऑपरेट कर रही हूँ, अभी नेगेटिव ग्रुप को ऑपरेट करूंगी, ठीक है। तो नेगेटिव ग्रुप में हमारा कौन सा हाफ अभी आ रहा है राइट नाउ? कौन सा हाफ आ रहा है? पॉजिटिव। राइट नाउ हम लोग को कौन सा हाफ आ रहा है? पॉजिटिव हाफ आ रहा है। तो पॉजिटिव हाफ में कौन सा नेगेटिव ग्रुप एक्टिव होता है, फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? इन पॉजिटिव हाफ विच N2, पॉजिटिव हाफ में N2 इज, हाँ N2 इज फॉरवर्ड बेस्ड, तो अभी N2 ऑपरेट करेगा। बट N2 क्या करेगा? अगर पॉजिटिव आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा मैं ना चेंज करें यहाँ पे, हाँ चेंज क्यों, ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस हो रहा है, इसलिए इसलिए चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग को रब करने की जरूरत नहीं है, हाँ। देखो यहाँ तक आ रहा था ना, अब ये कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये कंटिन्यू यहाँ तक ब्रेक हुआ था, इसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये पार्ट को तुम लोग रब कर सकते हो। क्लियर? नेगेटिव हाफ में आ रहा है उल्टा। अच्छा ये थोड़ा सा रॉन्ग बन गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ। रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ऐसा आएगा, ठीक है। अभी बना लो, अभी ठीक हो गया। सो P1 P2 P1 P2, उसके बाद N2, नेगेटिव ग्रुप ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ N2, ठीक है। ये यहाँ से एक्चुअली देखो N2 ना यहाँ से लेके ऑपरेट हो रहा है यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑपरेट हो रहा है। अभिषेक क्लियर हो रहा है? ग्रीन से मार्क करिए N2। P2 का ऑपरेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद N2 का ऑपरेशन चालू करिए। एक्चुअली पॉजिटिव ग्रुप के बाद N2, वी आर नाउ फायरिंग N2। नेगेटिव ग्रुप्स अभी सिर्फ नेगेटिव ग्रुप होगा, तो अभी देखो N2 हुआ, उसके बाद N1, बिकॉज नेगेटिव हाफ इज कमिंग इनटू पिक्चर। सी, नेगेटिव हाफ इज कमिंग इनटू पिक्चर। नेगेटिव हाफ मतलब कौन सा वाला नेगेटिव ग्रुप? कौन सा वाला N1। सो ये तुम्हारा नेक्स्ट मैं बना रही हूँ ऐसे करके, ऐसे। ओके, सो N2 N1 N2 N1, एक बार N2 होगा, फिर N1 होगा, फिर एक बार N2, फिर एक बार N1, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग इसके ऊपर से इफ एक एनवलप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से अगर एक एनवलप ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये मेरा एंडिंग है, इस तरह से आएगा। सो दिस कंप्लीट्स वन साइकिल फॉर द आउटपुट। ब्लू वाला जो लाइन है, ब्लू वाला जो लाइन है वो एक आउट कंप्लीट साइकिल शो कर रहा है फॉर V0, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो हाफ साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यू कैन सी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हाफ साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रहा है।
ये देखो बीच में मैंने हाईलाइट किया ना, ये हाफ साइकिल हुआ, वहां से फिर N2 वाला शुरू हो रहा है, उसके पहले P पॉजिटिव ग्रुप था, उसके बाद N नेगेटिव ग्रुप चालू हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्लू लाइन शो कर रहा है कि कंप्लीट साइकिल कहाँ से लेके कहाँ तक है, वो एक एसी ही है। ये एसी जैसा दिख नहीं रहा है, बट अगर इसको फिल्टर किया जाएगा विल बी गेटिंग अ प्योर एसी आउट आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? अच्छा एक बार बताओ तो, वेवफॉर्म समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नेगेटिव पार्ट, बट एक बार और देखोगे, एक बार रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं। हाँ, इनपुट साइड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? आई एम जस्ट शोइंग विद द ब्लैक लाइन, दिस इज टीएस। टीएस मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई वोल्टेज वीएस। ओके, नाउ अबाउट द टाइम पीरियड। अच्छा, यू मे बी आस्किंग कि इसके बाद कैसा आएगा? इसके बाद वही चीज कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जैसे हम लोग कर रहे थे, P1, यहाँ पे P1 होगा, फिर P2 होगा, फिर P1 होगा, फिर P2 होगा, वही सेम साइकिल रिपीट होगा जो यहाँ पे था। ठीक है, ये मैं एक साइकिल जस्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा सो हाँ, इसके लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड। सो वन टाइम पीरियड फॉर V नॉट इज इक्वल टू दिस वन, T नॉट। यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो T नॉट, सो नाउ व्हाट इज द रिलेशन? TS इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ T नॉट? कितना टाइम्स आ रहा है? हाँ, ये देखो यहाँ पे मैं मार्क करी हूँ, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, 4 टाइम्स ना? हम्म, हाँ 4, हाँ 4 टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स नहीं हो रहा है। अनीशा एक बार देखो, ये एक हुआ, दो हुआ, पूरा साइकिल को लेना है, तीन लेना है, चार लेना है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, चार। ठीक है, मतलब टीएस, हाँ टीएस इंटू कितना होगा कि टी नॉट आएगा? सॉरी, मैं भी उल्टा लिख दी हूँ, मैं भी उल्टा लिख दी हूँ। अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने भी उल्टा लिख दिया था। टी नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स TS। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं, टी नॉट के जगह पे 1/F0 एंड TS के जगह पे इफ यू आर राइटिंग 1/Fs, देन यू विल बी फाइंडिंग F0 इज इक्वल टू कितना टाइम्स आ रहा है? Fs बाई, हाँ 1/4 ऑफ Fs। तो यहाँ पे मेरा F0 इज लेस देन Fs हो रहा है ना, इसलिए उसको स्टेप डाउन कह रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टेप डाउन। ये मेरा यहाँ पे रब हो गया हाथ से। ठीक है, बट वेवफॉर्म कंप्लीट हो गया था ना? ठीक है, ये नोट कर लो, टी नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम्स TS एंड F0 इज इक्वल टू Fs/4। सो हियर F0 is, the value of F0 is smaller than Fs. That means the frequency, output frequency of output voltage is smaller than the input frequency. That is why it is known as step down cycloconverter. Step down AC to AC converter. Now we'll be discussing bridge type. ये हुआ था हमारा मिड पॉइंट टाइप। ठीक है, नाउ ब्रिज टाइप विल बी डिस्कसिंग। तो ये रब करिए टॉपिक हुआ। नाउ आफ्टर दिस स्टेप डाउन बट ब्रिज टाइप। Okay, the next topic is
one phase to one phase to one phase, bridge type, step down cycloconverter. One phase to one phase, bridge type, cycloconverter. One phase AC supply voltage and output is also one phase. And bridge type, क्योंकि हम लोग bridge type circuit configuration ले रहे हैं, and step down, why? Because here F naught will be smaller than Fs, इसलिए step down. ठीक है. So now let us discuss the circuit. अभी जो हम लोग starting में circuit discuss किए थे same ही है. Okay, लिख लियो topic का नाम. Topic लिख लिए ना? Okay, now circuit diagram. So we are taking RL load. These are all thyristors. Negative group will always be connected in reverse direction to the positive group. देखना ये चीज मार्क करना. ठीक है. These are positive group. This is supply voltage. This is V naught. Give the polarity sign for the V naught. Negative group. Okay. N1, N2, N3, N4. These points are shorted, huh? This is point A, B. This is also point A, and this is point B. On both the side, point A are same, and point B are also same. ठीक है. सेम सर्किट डायग्राम एज वी हैव डिस्कस. खाली क्या है, वर्किंग अलग है. वर्किंग किस एंगल से अलग है? वी हैव टू कंट्रोल थायरिस्टर्स इन सच अ मैनर कि हम लोग को सर्किट सेम रहेगा दोनों में. हाँ, वी हैव टू कंट्रोल द थायरिस्टर्स इन सच अ मैनर दैट वी विल बी गेटिंग अ स्टेप डाउन ऑपरेशन. ठीक है. सीक्वेंस को हमको कंट्रोल करना है, किसके बाद कौन सा फायर होगा. दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर. सर्किट सेम है. ठीक है. So this is a circuit diagram. P stands for the positive group, 4 positive groups and 4 numbers of negative group. P1, P2, P3, P4 are forming the positive group. N1, N2, N3 and N4 are forming the negative group. Okay. So now let us discuss पॉजिटिव हाफ आने से कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है. सो पॉजिटिव हाफ में है लिखो यहाँ पे P1 P2 है इधर, या फिर कौन कौन सा है यहाँ से N1 N2.
P1 P2 या फिर N1 N2, right? P1 P2 or N1 N2, and during negative half P3 P4 और N3 N4. ठीक है, ये नोट कर लो. पॉजिटिव हाफ में P1 P2 and N1 N2 are forward biased, and negative half में P1 P3 और N3 N4 from the negative group are forward biased. ठीक है. Now we will be discussing in the waveform. तो वर्किंग सेम है यहाँ पे, बस हमको सीक्वेंस को कंट्रोल करना है, किसके बाद कौन सा फायर होगा. ओके, सो रब कर रही हूँ सर्किट डायग्राम. वी आर टेकिंग अ आरएल लोड ओवर हियर. सप्लाई वोल्टेज. Supply voltage with respect to time, and next we will be drawing output voltage with respect to time. Now highlight the zero crossing points. ओके, यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो. अनिशा हो गया? अनिशा, अच्छा. तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आउटपुट वोल्टेज. साथ साथ बनाओगे ना तो क्लियर होगा. ठीक है. सो ये आरएल लोड है. ठीक है, तो पॉजिटिव पहले हम लोग को पॉजिटिव हाफ आ रहा है. सो पॉजिटिव हाफ में अभी हम लोगों ने लिखा था पॉजिटिव हाफ में या तो फिर P1 P2 या फिर N1 N2 आर फॉरवर्ड बायस्ड. तो अभी मैं फायर कर रही हूँ P1. अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव ग्रुप्स को ही फायर करना है. ठीक है, नेगेटिव ग्रुप को एकदम नहीं लेना. तो पॉजिटिव हाफ में कौन सा पॉजिटिव ग्रुप मीन्स ये है फॉरवर्ड बायस्ड है P1 P2. N1 N2 नहीं लेना है अभी. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव ग्रुप्स देखना है. सो P1 एंड P2. सो ड्रॉ द वेव फॉर्म. क्योंकि हमारा आरएल हेलो.
हेलो। हाँ अनीशा, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। फिर से कनेक्ट किए। हाँ। अभिषेक शायद नहीं है। हो, अच्छा ठीक है। हाँ, वी नॉट, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वी नॉट। सो ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ, P1 P2 we are firing P1 and P2, P1 P2 both will be connected, otherwise सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एक बार सर्किट डायग्राम देखना तो तब समझ में आएगा P1 P2 एक साथ क्यों ले रहे हैं। P1 से शुरू होगा इनपुट, मतलब करंट जो है इन P1 से स्टार्ट होगा लोड से होते हुए P2 से रिटर्न। तो एक था क्योंकि ब्रिज है ना, एक पेयर में ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो P1 P2 बोथ टुगेदर, नहीं तो नहीं होगा सर्किट। ओके, उसके बाद नेगेटिव हाफ आ रहा है ना, उसी नेगेटिव हाफ इज कमिंग। नेगेटिव हाफ में कौन सा पॉजिटिव ग्रुप फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? नेगेटिव हाफ में कौन सा पॉजिटिव ग्रुप फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? टेल मी। हाँ, तो पॉजिटिव हाफ क्या करेगा? नेगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, इजंट इट? तो P3, राइट डाउन P3 एंड P3 P4 इन अ ग्रुप, इन अ पेयर, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। सो P1 P2 ऑपरेट हुआ, उसके बाद P3 P4 इसको एक्सटेंड कर देंगे। ओके, नाउ आफ्टर दिस अगेन ऐसा ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे P1 P2, नाउ इन दिस केस सॉरी P3 P4। तो पॉजिटिव ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मैं नेगेटिव ग्रुप करूँगी। नाउ नेगेटिव ग्रुप के लिए नेगेटिव ग्रुप के लिए नाउ अभी कौन सा हाफ आ रहा है? अभी अभी राइट नाउ कौन सा हाफ आ रहा है? सी विच हाफ इज कमिंग? पॉजिटिव हाफ इज कमिंग। पॉजिटिव हाफ में से कौन सा नेगेटिव ग्रुप फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा है? पॉजिटिव हाफ में विच पेयर ऑफ नेगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर्स आर फॉरवर्ड बेस्ड? नहीं, हाँ, पॉजिटिव हाफ में N1 N2, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा। जैसे हम लोग पिछला वाला डिस्कस किए थे। ठीक है, सो यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ। यहाँ पे है तुम्हारा नेगेटिव ग्रुप। सो N1 N2, पॉजिटिव हाफ में N1 N2, नेगेटिव हाफ आ रहा है अभी, नेगेटिव हाफ में है N3 N4। N3 N4, okay. Now positive half once again N1 N2, N3 N4। ठीक है, तो 4 बार मैंने पॉजिटिव ग्रुप ऑपरेट किया एंड 4 बार नेगेटिव ग्रुप को ऑपरेट किया। सो दिस कंप्लीट्स वन साइकिल। ठीक है, इसके ऊपर से अगर एक एनवेलप फॉर्म करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट है। देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सेंटर पॉइंट है। हाँ, सॉरी, ऐसा आएगा। ठीक है, तो साइकिल शुरू हो रहा है यहाँ से, जीरो से, एंड कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज द मिड पॉइंट जहाँ से नेगेटिव ग्रुप शुरू हो रहा था ऑपरेशन। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड। दिस इज TS and this is T naught. So in this case T naught is equal to 4 times आ रहा है, you can see 4 times of TS, and इसको अगर solve करते हैं, if you will solve this, you will find F naught is equal to Fs by 4।
ये एक्सप्रेशन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, एफ नॉट इज स्मॉलर देन एफ एस, इसलिए इसको स्टेप डाउन ऑपरेशन कहते हैं। 4 टाइम्स कैसे हो रहा है, यू कैन सी ओवर हियर 4 टाइम्स कैसे हो रहा है। ये यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 टाइम्स हो रहा है। 4 टाइम्स ऑफ टी एस इज इक्वल टू टी नॉट, जैसे हम लोग पहले बार डिस्कस किए थे, सेम वेव फॉर्म है बट यहाँ पे पेयर में ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया मीन्स स्टेप डाउन। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो अभिषेक, कुछ डाउट है? ओके अनिशा, नहीं तो एंगल्स अल्फा यहाँ पे है, ये देखो, हाँ ये यहाँ पे है अल्फा, अल्फा पाई, ठीक है, पाई प्लस अल्फा, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, पाई प्लस अल्फा। यहाँ पे एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं है बनाना, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, ऐसे करके हर एक जो अल्फा है वो डिपेंड करता है हम कितने में फायरिंग करेंगे। अल्फा 30 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री, 60 डिग्री, जितना चाहे रख सकते हैं। बट यहाँ पे हाँ, कितना टाइम्स चाहिए, कितना टाइम्स रिड्यूस करना है, यहाँ जैसे मेरे को 4 टाइम्स रिड्यूस करना था, तो 4 टाइम्स मुझे P1 P2 पॉजिटिव ग्रुप को करना है, 4 टाइम्स नेगेटिव ग्रुप को करना है। सपोज मुझे 8 टाइम्स रिड्यूस करना है, 8 टाइम्स रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 टाइम्स पॉजिटिव ग्रुप को ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर 8 टाइम्स नेगेटिव ग्रुप को करना पड़ेगा, फिर वो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, एफ नॉट जो है वो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस को कंट्रोल करना है, मतलब सर्किट डायग्राम इज सेम, ओनली वी हैव टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ थायरिस्टर्स इन सच अ मैनर कि जितना डिजायर्ड हम लोग को फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करना है वो हम लोग कंट्रोल कर पाए, ठीक है। क्लियर, ठीक है, समझ में आया? तो आज, हाँ आज का क्लास छोड़ती हूँ, फिर कल फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। 3 फेज का, अभी 1 फेज का कंप्लीट हो गया, 3 फेज विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। ओके, हाँ थैंक यू, ठीक है, बाय बाय।